Hello everyone, I am Ajay Wak from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Again, I welcome you to the Advanced Manufacturing Processes for the 5th semester Diploma in Mechanical Engineering. Today we will start with lecture number 2, that is Group Technology and Flexible Manufacturing System. Learning outcomes of this topic, that is Group Technology and Flexible Manufacturing System. After completion of this lecture, learners will be able to, first one, understand the concept of group technology, part families and need of flexible manufacturing system. Second one, understand the benefits, disadvantages and applications of group technology. Program outcome achieved through this topic are given in the table listed below. Introduction of group technology. Group technology is an approach to organize manufacturing which can be applied in any industry producing a variety of product in small batches. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ग्रुप टेक्नोलॉजी एक कंसेप्ट है जिससे अलग अलग वेराइटी और डिजाइन के प्रोडक्ट्स स्मॉल बैचेस में बना सकते हैं. It is defined as a philosophy or layout in which similar parts are grouped together in a family in order to take the advantages of their similarities in design and production. ग्रुप टेक्नोलॉजी टेक्निक में सिमिलर डिजाइन के पार्ट्स का ग्रुप बनाते हैं. वो ग्रुप को एक फैमिली कहते हैं. Parts that are not similar in shape may still require similar manufacturing processes forms a group of the family. कोई पार्ट या कंपोनेंट सेम साइज और शेप के नहीं है बट सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनाना है तो भी वो पार्ट्स का अलग फैमिली ग्रुप बनाते हैं. The machines and equipments required to manufacture the parts in the family are organized into a cell. जो पार्ट्स पर्टिकुलर फैमिली ग्रुप के हैं उनको बनाने के लिए जो मशीन्स और इक्विपमेंट लगते हैं उनका लेआउट और सेल बनाया जाता है. Such a layout is called as group technology layout or cellular layout. ग्रुप टेक्नोलॉजी में वो बोलते हैं, इसको टेक्नोलॉजी लेआउट बोलते हैं और सेलुलर लेआउट बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के पार्ट्स का एक अलग ग्रुप बनाया जाता है. उसको फैमिली, उनका एक पर्टिकुलर फैमिली बनाते हैं, उसको एक सेल के अंदर डालते हैं. यही टेक्निक को हम बोल सकते हैं ग्रुप टेक्नोलॉजी टेक्निक. Group technology layout is also called manufacturing cell layout. For example, a plant producing 10,000 part numbers may be able to group the parts into 50 or 60 families. Each family would possess similar design and manufacturing characteristics. कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 10,000 पार्ट्स बना रहे हैं तो सेम डिजाइन वाले या सेम शेप वाले 50 टू 60 पार्ट का ग्रुप बनाते हैं, उसको एक फैमिली बोलते हैं. Hence, the processing of each member of a given family would be similar and this results in manufacturing efficiency in the form of reduced setup, lower in-process inventories, better scheduling, improved tool control, standard process plan. इससे मशीन का सेटअप टाइम कम हो सकता है, इन प्रोसेस इन्वेंट्री भी कम होती है, मीन्स तुरंत रॉ मटेरियल एक मशीन से दूसरे मशीन पे जाएगा. बेटर शेड्यूलिंग या प्लानिंग भी कर सकते हैं, मशीन टूल का कंट्रोल भी अच्छा रहेगा एंड इससे ग्रुप टेक्नोलॉजी से हम स्टैंडर्ड प्रोसेस प्लान भी बना सकते हैं. इससे भी मदद मिलती है स्टैंडर्ड प्रोसेस प्लान बनाने के लिए ग्रुप टेक्नोलॉजी टेक्निक से. The parts are transferred from one unit to another with minimum and fast movement as the machines are located near to each other and the travel is limited to a group only. In group technology layout, machines are arranged in a line for each group. आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग मशीन्स का लेआउट और सेल बना है. जैसे सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, यहाँ पे मशीन्स को अरेंज किया इन अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन.
मशीन्स को यहाँ पे एक लाइन में अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन परफॉर्म ऑन अ पर्टिकुलर जॉब और कंपोनेंट। रॉ मटेरियल को अलग अलग सेल में ट्रांसफर करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन द कंपोनेंट और पार्ट। कंपोनेंट को प्रोसेसिंग करने के बाद असेंबली लाइन में असेंबल किया जाता है और फिर फिनिश गुड एड एरिया में ट्रांसफर करते हैं, वहां से फिनिश प्रोडक्ट को डिस्पैच किया जाता है। Thus, group technology is a modification of product and process layout and overcomes the drawbacks of both types. प्रोडक्ट लेआउट में ऑल द प्रोसेसिंग इक्विपमेंट और मशीन्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में ऑफ द प्रोडक्ट, और प्रोसेस लेआउट में प्रोसेसिंग इक्विपमेंट और मशीन्स को अरेंज नहीं करते अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन बट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू नेचर और टाइप ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म दैट प्रोडक्ट। Same type of operation facilities are grouped together such as lathe machines will be placed at one place. प्रोसेस लेआउट में ऑल मशीन को एक जगह पे लाते हैं और वहां पे जैसे लेथ मशीन है वहां पे लेथ मशीन के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। फिर उसके बाद अगर ड्रिलिंग मशीन पे ऑपरेशन करना तो ड्रिलिंग मशीन ऐसे अरेंज करते हैं प्रोसेस लेआउट में। बट ग्रुप टेक्नोलॉजी में अकॉर्डिंग टू ऑपरेशंस मशीन्स को यहाँ पे अरेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे लेथ मशीन दिया है, लेथ मशीन का ऑपरेशन होने के बाद अगेन एक ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा, दूसरा ऑपरेशन अगेन दूसरे मशीन पे होगा लेथ मशीन पे, उसके बाद मिलिंग मशीन पे ऑपरेशन होगा, उसके बाद ड्रिलिंग मशीन पे ऑपरेशन होगा, उसके बाद ग्राइंडिंग होगा, फिनिशिंग होगा, फिर वहां पे उसको ट्रांसफर करते हैं असेंबली एरिया में। वैसे यहाँ पे सेल नंबर 2 में अलग अलग मशीन लगे, जैसे लेथ मशीन लगा यहाँ पे, मिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, अगेन ग्राइंडिंग करना है, फिनिशिंग करना है। सेल नंबर 3 में लेथ मशीन है, मिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन परफॉर्म मशीन्स को अरेंज करते हैं इन सीक्वेंस और उसको फिनिशिंग करते, प्रोसेसिंग करते हैं। तो इससे बेटर यूटिलाइजेशन प्लांट का होता है, रॉ मटेरियल का फ्लो भी अच्छा होता है, इन प्रोसेस जो इन्वेंट्री होता है यहाँ पे कम लगता है। दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप टेक्नोलॉजी। पार्ट फैमिलीज। Part family is a collection of parts that are similar either because of geometric shape and size or because similar processing steps are required in their manufacture. ग्रुप टेक्नोलॉजी टेक्निक में अलग अलग पार्ट्स को उसके शेप एंड साइज के हिसाब से और सिमिलर डिजाइन के हिसाब से और सिमिलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाले पार्ट्स को कलेक्ट करते हैं। जो कलेक्शन होता है उसको ही बोलते हैं पार्ट फैमिली। The parts within a family are different, but their similarities are close enough to merit their inclusion as members of the part family. पार्ट फैमिली में जो पार्ट और कंपोनेंट होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, परंतु कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होती है। जैसे कि सिमिलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग वाले पार्ट्स को या सिमिलर डिजाइन वाले पार्ट्स को अलग ग्रुप में बनाते हैं और वही ग्रुप को बोलते हैं पार्ट फैमिली। फिगर 1 एंड 2 shows two different part families। यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर नंबर ए है और फिगर नंबर बी। यहाँ पे जो पार्ट है, कंपोनेंट है, उसका शेप एंड साइज सेम है बट यहाँ पे डिफरेंट, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आइडेंटिकल शेप एंड साइज बट डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स अलग अलग। जैसे यहाँ पे है 1 लाख पीस पर ईयर और मटेरियल यहाँ पे दिया है 1015 CR स्टील और निकल प्लेट का मटेरियल दिया है, ये वाला मटेरियल, इससे ये मटेरियल से ये बनाना पड़ेगा। और दूसरा बी वाला जो मटेरियल कंपोनेंट का मटेरियल दिया है उसका रिक्वायरमेंट है 100 पीस पर ईयर, मटेरियल दिया है 8x8 स्टेनलेस स्टील। यानी डिजाइन सेम है, दोनों का डिजाइन मीन्स शेप एंड साइज सेम है बट रिक्वायरमेंट जो है अलग अलग है। तो जैसे सेम एंड शेप एंड सेम शेप एंड साइज के कंपोनेंट हो गया, सेम डिजाइन के कंपोनेंट को उसको एक ग्रुप में लाते हैं, इसको बोलते हैं पार्ट फैमिली। बट रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो सकता है। तो इससे क्या होता है, ये इट इज इजी होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग करने के लिए, बट यहाँ पे सिर्फ मटेरियल चेंज होगा। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल दिया है पार्ट फैमिली का। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, अ फैमिली ऑफ पार्ट्स
with similar manufacturing process requirements but different design attributes. सिमिलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है होता है ये कंपोनेंट के ऊपर, बट जो डिजाइन है ये कंपोनेंट का डिजाइन अलग अलग यहाँ पे दिया है. ऑल पार्ट्स आर मैन्युफैक्चर आर मशीन फ्रॉम सिलिंड्रिकल स्टॉक बाय टर्निंग. सम पार्ट्स रिक्वायर ड्रिलिंग और मिलिंग ऑपरेशन. तो यहाँ पे जो कंपोनेंट का शेप है वो है सिलिंड्रिकल शेप दिया है, बट इसके ऊपर अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस करना पड़ेगा. कुछ में ड्रिलिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा, कुछ में थ्रेडिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा, कुछ में मिलिंग ऑपरेशन भी यहाँ पे करना पड़ेगा. तो ऐसे कंपोनेंट को कलेक्ट करते हैं, सिलिंड्रिकल स्टॉक की कंपोनेंट को कलेक्ट करेंगे और उसको अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करेंगे. तो इसको ही बोलते हैं कलेक्शन ऑफ पार्ट्स को. अलग अलग पार्ट्स को सेम प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने के लिए जो पार्ट्स कलेक्ट करते हैं उसको हम बोल सकते हैं पार्ट फैमिली. एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप टेक्नोलॉजी. First advantage is the unit cost of product is less as it is a type of mass production. Per piece production cost कम होता है. Second one is the manufacturing cycle time is reduced. प्रोडक्ट बनाने के लिए जो समय लगता है वो भी कम लगता है. Third one is material handling is reduced because parts are moved within a machine cell rather than within the entire factory. रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग करने के लिए एक मशीन से दूसरे मशीन तक मटेरियल ट्रांसफर करने का टाइम भी कम लगता है, क्योंकि मटेरियल ट्रांसफर जो होता है वो मशीन सेल के अंदर होता है, ना कि एंटायर फैक्ट्री एरिया में. फोर्थ वन इज प्रोसेस प्लानिंग एंड प्रोडक्शन शेड्यूलिंग आर सिंप्लीफाइड. रॉ मटेरियल को मशीनिंग करने का प्लानिंग और शेड्यूलिंग भी सिंपल होता है. Next one, setup times are reduced, resulting in lower manufacturing lead times. Work in process reduce. मशीन सेटअप टाइम कम होता है, उसके कारण प्रोडक्ट बनाने को का समय भी कम लगता है. नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्डाइजेशन रिजल्ट्स इन इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ लेबर्स. स्टैंडर्ड ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट में मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसकी वजह से वर्कर्स की काम करने की एफिशिएंसी भी बढ़ती है. नेक्स्ट वन इज वर्कर सेटिस्फैक्शन यूजुअली इंप्रूव्स व्हेन वर्कर्स कोलैबोरेट इन अ जीटी और ग्रुप टेक्नोलॉजी सेल. अल्टीमेटली ग्रुप टेक्नोलॉजी सेल में वर्कर का काम करने का सेटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ता है. दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप टेक्नोलॉजी. डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रुप टेक्नोलॉजी. फर्स्ट वन इज grouping of parts into family is time consuming and require analysis of much data by properly trained personnel. different शेप एंड साइज के कंपोनेंट और पार्ट को ग्रुप में कलेक्ट करने का समय ज़्यादा लगता है. इसके लिए बहुत ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत होती है और पार्ट फैमिली बनाने के लिए ट्रेन पर्सन की भी ज़रूरत होती है. सेकंड डिसएडवांटेज इज मोर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड. ग्रुप सेल बनाने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है. थर्ड वन इज जिग्स एंड फिक्चर्स आर रिक्वायर्ड टू बी डिजाइन फॉर ईच फैमिली. वर्कपीस और पार्ट को मशीन में होल्ड करने के लिए जिग्स एंड फिक्चर की जरूरत होती है. अलग अलग पार्ट फैमिली ग्रुप के लिए जिग एंड फिक्चर को डिजाइन करना होता है. Applications of group technology. First one is it can be applied to preventive maintenance activities for more efficient and effective maintenance operations. ग्रुप टेक्नोलॉजी टेक्निक से हम मशीन्स का और मशीनरीज का मेंटेनेंस शेड्यूल सही ढंग से कर सकते हैं. सेकंड वन इज इट इज यूज फॉर एफिशिएंट डिजाइन डेटा मैनेजमेंट. पार्ट्स का अलग अलग फैमिली ग्रुप में कलेक्शन करने की वजह से पार्ट या कंपोनेंट का डिजाइन डेटा बनाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं. थर्ड वन इज इट इज अप्लाइड एट द प्रोडक्शन प्लानिंग फेज ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट. नए पार्ट का प्रोडक्शन प्लानिंग करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं. फोर्थ वन इज इट ऑल्सो सपोर्ट्स द इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग. पार्ट को शेप एंड साइज के हिसाब से अलग अलग करते हैं, उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेटअप बना सकते हैं. Fifth one is it is applied for implementing statistical process control in manufacturing
ऑफ स्मॉल बैच क्वालिटी कंट्रोल मेथड अप्लाइड करने के लिए और स्मॉल बैच प्रोडक्शन प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मॉनिटर एंड कंट्रोल करने के लिए भी ग्रुप टेक्नोलॉजी टेक्निक का यूज करते हैं. Now let us see about the flexible manufacturing system. What is flexible manufacturing system? A flexible manufacturing system is a automated machine shell consisting of a group of processing workstations interconnected with automated material handling and storage system. फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम मीन्स ऐसा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ ऑटोमेटेड मशीन टूल को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन अ पर्टिकुलर जॉब और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग वर्क स्टेशन होते हैं और ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग और ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल का यूज करते हैं प्रोसेसिंग मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए. मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम और फ्लेक्सिबल होता है मीन्स कोई भी डिजाइन वाला कंपोनेंट बना सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ टाइम. फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए. मीडियम वेराइटी वाले और स्मॉल बैच वाले टाइप प्रोडक्शन वाले कंपोनेंट बनाने के लिए फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का यूज करते हैं. जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ मशीन्स अरेंज किया है, सीएनसी मशीन यहाँ पे अरेंज किया है और यहाँ पे ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल का भी यूज किया है मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे कंप्यूटर भी दिया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मॉनिटर करने के लिए. यहाँ पे कंप्यूटर से मॉनिटर करते हैं और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. व्हाई फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम? फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्यों जरूरी है? एक्सटर्नल चेंजेस सच एज चेंज इन प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्रोडक्शन सिस्टम. कोई प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज हुआ तो या प्रोडक्शन सिस्टम चेंज हुआ तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कारगर साबित होता है. मीन्स फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से इजीली प्रोडक्ट डिजाइन वेरिएशन कर सकते हैं. सेकंड वन, ऑप्टिमाइजिंग द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम. मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम को कम करने के लिए भी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं. थर्ड वन इज रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए भी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का यूज होता है. फोर्थ वन इज ओवरकमिंग इंटरनल चेंजेस लाइक ब्रेकडाउन्स एक्सेट्रा. मशीन टूल का मेंटेनेंस या ब्रेकडाउन को कम कर सकते हैं बाय मींस ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. व्हाट मेक्स इट फ्लेक्सिबल? Three capabilities that a manufacturing system must possess to be a flexible. मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में 3 कैपेबिलिटी या क्षमता होना जरूरी है. फर्स्ट वन इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश अमंग द डिफरेंट पार्ट स्टाइल्स प्रोसेस बाय द सिस्टम. नए पार्ट या कंपोनेंट को पार्ट फैमिली के हिसाब से आइडेंटिफाई करने की और अलग करने की क्षमता होना जरूरी है. सेकंड वन इज क्विक चेंज ओवर ऑफ ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस. पार्ट प्रोग्राम में डिफरेंट पार्ट बनाने के लिए जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वो जल्दी से चेंज होने चाहिए और एक पार्ट डिजाइन से दूसरे पार्ट डिजाइन चेंजेस जल्दी होना चाहिए. थर्ड वन इज क्विक चेंज ओवर ऑफ फिजिकल सेटअप. मशीन्स के सेटअप को इजीली चेंज करते आना चाहिए. दीज आर द 3 capability to be required in a flexible manufacturing system. Classification of flexible manufacturing system. Flexible manufacturing system can be distinguished according to the number of machines in the system. The following are typical categories. First one is single machine cell, second one is flexible manufacturing cell, and third one is flexible manufacturing system. First one is single machine cell. A single machine cell
consists of one CNC machining center combined with a parts storage system for unattended operation. Completed parts are periodically unloaded from the parts storage unit and raw work parts are loaded into it. सिंगल मशीन सेल में सिंगल सीएनसी मशीनिंग सेंटर होगी जिससे पार्ट को प्रोड्यूस करते हैं या मशीनिंग करते हैं। सिंगल मशीन सेल में सिंगल सीएनसी मशीन सेंटर का यूज करते हैं जिससे एक ही मशीन पे मैन्युफैक्चरिंग होती है और साथ साथ रॉ मटेरियल और फिनिश कंपोनेंट को ऑटोमेटेड ट्रांसफर करते हैं। कंप्लीटेड पार्ट को प्रोसेसिंग होने के बाद अनलोड करते हैं और रॉ मटेरियल पार्ट को लोड करते हैं इन अ पैलेट। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे सीएनसी मशीनिंग सेंटर है जिसके साथ ऑटोमेटिक टूल चेंजर भी लगाया है। यहाँ पे मशीनिंग होने के बाद ये पार्ट को अनलोड करते हैं और रॉ मटेरियल पार्ट को यहाँ पे लोड किया जाता है। ये जो ट्रांसफर होता है लोडिंग एंड अनलोडिंग सिंगल मशीन सेल में ये ऑटोमेटेड होता है। सेकंड वन इज फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल। A flexible manufacturing cell consists of 2 or 3 processing workstations, typically CNC machining center plus a part handling system. The part handling system is connected to a load-unload station. Flexible manufacturing cell में 2 से 3 CNC मशीनिंग सेंटर्स और वर्कस्टेशंस होते हैं और यहाँ पे जो मटेरियल ट्रांसफर होता है फ्रॉम शटल होता है। यहाँ पे शटल टाइप मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम लगाया है। यहाँ पे सबसे पहले अनफिनिश और रॉ मटेरियल को लोड किया जाएगा और प्रोसेसिंग करने के लिए सबसे पहले वर्क स्टेशन 1 में आ जाएगा। यहाँ पे प्रॉपरली मशीनिंग होगा या प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद वर्क स्टेशन 2 में आ जाएगा, फिर उसके बाद अगेन प्रोसेसिंग होने के बाद वर्क स्टेशन 3 में आ जाएगा। यहाँ से फिनिश कंपोनेंट को अनलोड किया जाएगा, अगेन रॉ मटेरियल को यहाँ से लोड किया जाएगा एंड work goes in processing. Third one is flexible manufacturing system. A flexible manufacturing system has 4 or more processing workstations connected mechanically by a common part handling system. Flexible manufacturing system में 4 or more CNC workstations होते हैं और सभी वर्कस्टेशंस वर्कपीस और मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। जैसा कि फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कस्टेशंस है जो कि कॉमन मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आर, फर्स्ट वन इज वर्कस्टेशंस, second one is automated material handling and storage system, and third one is computer control system. Basic component सबसे पहले होता है workstations. Number of workstations are there in a flexible manufacturing system. Automated material handling system रहता है और storage system भी रहता है। जो फिनिश कंपोनेंट रहता है उसको स्टोरेज करने का भी सिस्टम रहता है। ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम भी रहता है जो कि मटेरियल को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। थर्ड मेन कंपोनेंट इज कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्किंग रहता है जिसके थ्रू हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हुए मशीनिंग और प्रोसेसिंग करते हैं ऑन अ पार्ट और ऑन अ वर्कपीस। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, फर्स्ट वन इज वर्क स्टेशन। फर्स्ट स्टेशन इज लोड एंड अनलोड स्टेशन। यहाँ पे लोडिंग एंड अनलोडिंग होता है वर्कपीस मटेरियल का। सेकंड वन इज मशीनिंग स्टेशंस। यहाँ पे एक्चुअल मशीनिंग किया जाता है वर्कपीस का और रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते फिनिशिंग कंपोनेंट्स में। थर्ड कंपोनेंट है अदर प्रोसेसिंग स्टेशंस। यहाँ पे फिनिशिंग ऑपरेशन करना होता है या अदर ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना तो ये भी एक प्रोसेसिंग स्टेशन होता है वर्क स्टेशन में। फोर्थ एंड लास्ट स्टेशन इज असेंबली सेक्शन। यहाँ पे जो प्रोसेसिंग पार्ट होता है उसको असेंबल किया जाता है एंड डिस्पैच किया जाता है। सेकंड बेसिक कंपोनेंट ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इज मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में ऑटोमेटेड फोर्क लिफ्टिंग एंड रेल ट्रैवलर। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, ये है ऑटोमेटिक फोर्क लिफ्टिंग, इससे भी मटेरियल हैंडलिंग
या शिफ्टिंग और ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और यहाँ पे ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल लगाया है यहाँ पे, जिससे रेल के थ्रू यहाँ से मटेरियल ऑटोमेटेड ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। थर्ड basic component of flexible manufacturing system is computer control system. कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, ये कंप्यूटर है और यहाँ पे इसके सब कंपोनेंट्स दिए हैं। बाय यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन prepare a part program and review of today's lecture. In today's lecture we discuss about or we learn about group technology techniques, flexible manufacturing system and its types, advantages and disadvantages of group technology. Unit outcome also through this topic are: first one, justify the use of group technology for the given situation, and second one is justify the use of flexible manufacturing system in a given situation. Program outcome also through this topic are given in the table listed below. Most likely questions asked in MSBT examination are: first question is define group technology, second question is explain group technology with sketch, and third question is explain the concept of flexible manufacturing system. ये तीन क्वेश्चन आपको आपके कॉपी में नोट डाउन करना है और इसके प्रॉपरली आंसर लिखना है. If you have any query regarding the writing of answer, then please call me. Thank you very much. Keep learning and happy learning. In next lecture, we start with a new topic, that is Introduction to Robotics.